ओके, वी आर लेफ्ट विद आर्टिकल्स ओनली। आर्टिकल्स में आपसे आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है गिव रीजंस टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट दैट विदाउट तौहीद देयर इज नो फेथ। व्हाट यू विल गोइंग टू राइट? Beta Sabha, it will be hardly, I will take only 15 minutes now, not more than this, because we are ending this session. मैं अब articles को हूँ, इसको फटाफट हम लोग cover करेंगे. And if you have any other question, तो हम वो उसको भी वो कर सकते हैं. मैंने तो अपनी तरफ से choose किए जो I felt के they are tricky or I should ask these questions. Other than these questions, you can even ask me. ठीक है? So what you will going to write that without Tawheed there is no faith. कोई आंसर कर सकता है? मैम बिकॉज तौहीद इज द मोस्ट फंडामेंटल बिलीफ एंड जो इस्लाम है वो तौहीद के उससे ही बना है, मतलब लाइक मिस जब हम God तौहीद is को one. एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो मिस हम इस्लाम को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मिस तौहीद इस्लाम यही है कि हम अल्लाह की वननेस और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट करें एज द मैसेंजर। तो मिस अगर हम यही ना एक्सेप्ट करेंगे तो फिर मिस हमारी फेथ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप कहेंगे विदाउट तौहीद देयर इज नो फेथ मींस कि इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन द वननेस ऑफ अल्लाह, परफॉर्मेंस ऑफ अदर पिलर्स ऑफ इस्लाम और बिलीविंग इन अदर आर्टिकल्स वुड बी मीनिंगलेस, because whatever you are doing for the sake of Allah's pleasure. If you are obeying Prophet sallallahu alaihi wasallam, you want to seek Allah's pleasure. If you are performing salat, paying zakat, observing fast, or performing hajj, you are doing only for the sake of Allah's pleasure. And in order to this, definitely you should in fact, if you are believing in the oneness of Allah, that's why you are doing all these pillars, performing all these pillars and believing in all the articles. We proclaim Shahada to enter into Islam, and since Shahada is based on Tawheed, so without Tawheed there is no faith. हाँ जी सबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल ये भी दोगे कि without believing in Tawheed, performance of pillars would be meaningless. ठीक है, performing of salat, zakat वगैरह ये सारा जो है वो would be meaningless. ठीक है? So your answer will revolve around Allah and seeking Allah's pleasure, because all things you are doing is for the sake of Allah's pleasure. ठीक है? Okay, does belief in angels make a Muslim faith stronger? Give reasons. I have written that belief in angels does make a Muslim's faith stronger. By believing in angels, even though they cannot be seen, a Muslim is confirming his or her firm belief in all that Quran says about them and what Prophet has said about them. So the revealed faiths prior to Islam also believe in angels, and this belief confirms that that the Muslims believe that Islam is the continuation and culmination of the previous faiths revealed by Allah, which makes their faith even stronger. So by believing in angels, angel Jibrail, for instance, the angel who brought revelation to Prophet Sallallahu, Muslims are convinced of the Quran being sent by Allah, which in turns make their faith stronger. आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और इसको मैं भी मीटिंग को ना यूट्यूब पे भी अपलोड भी कर दूंगी। इफ यू वांट टू वॉच अगेन और ये पॉइंट्स लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट डाउन। अच्छा जी, व्हाट इन योर ओपिनियन इज द प्राइमरी लिंक बिटवीन एंजल्स एंड प्रॉफिट्स? पहले आप बताएं, मैंने तो यहाँ लिखा ही हुआ है। एंजल्स और प्रॉफिट्स का क्या लिंक होता है? प्रॉफिट एंजल्स जो है वो हमारे मैसेंजर्स को मिस रेवलेशन देते हैं, अल्लाह की रेवलेशन जो, और कंसोल करते हैं, और जो मैसेंजर्स को बैटल्स में मदद भी करते हैं अल्लाह के एंजल। What else? Anyone else who want to add on something? जी बेटा। मिस बिलीवर्स की हार्ट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। यहाँ पर एंजल्स और प्रॉफिट्स की बात हो रही है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए, यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स और एग्जांपल्स मैं बताती जाऊंगी। अल्लाह सेंट मैसेज थ्रू एंजल्स, जितने भी मैसेज अल्लाह देते थे वो एंजल्स के थ्रू देते थे, जैसे एंजल जिब्राइल के थ्रू दिया जाता था। अल्लाह कंसोल्ड हिज प्रॉफिट्स थ्रू एंजल्स। किस तरह अल्लाह ने कंसोल किया किसी प्रॉफिट की? आप एग्जांपल दे सकते हैं, बिकॉज यू आर सपोज टू गिव एग्जांपल्स ओवर हियर। किसकी एग्जांपल आप देंगे? मिस जो फर्स्ट रेवोल्यूशन के बाद रेवोल्यूशन आना बंद हो गई थी,
वो उस टाइम के बाद जो रेवलेशन आई थी, जो प्रॉफिट की दुकानों को कंट्रोल करने के लिए रेवलेशन आई थी, वो लिख सूरह सकते दोहा, हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप एक एग्जांपल ये देख सकते हैं, that Allah consoled his prophets through angels. For instance, Prophet ﷺ was consoled by angel at the time of the gap of revelation. So Surah Doha was revealed in order to console Prophet ﷺ. इस तरह Allah protected his prophets through angels. किस तरह प्रोटेक्शन की बात कर सकते हो, यहाँ प्रॉफिट ﷺ की केव ऑफ सौर की एग्जांपल दे सकते हो, व्हेन पिजन लेड एग एंड कॉबवेब की आप एग्जांपल यहाँ दे सकते हो, ठीक है। देन आई हैव रिटन दैट अल्लाह प्रोवाइडेड गाइडेंस टू हिज प्रॉफिट्स, यहाँ पर आप इब्राहिम की एग्जांपल दे सकते हो कि वहां पर उनको किस तरह गाइड किया था, बाय ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अनसीन, ऑब्जर्व्ड अल्लाह थ्रू हेवनली बॉडीज, so he started believing in unseen God. When he showed love and care to his prophets through angels, यहाँ एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इस तरह मिराज में जब जिब्राइल लेके गए, ठीक है, यहाँ ताइफ का विजिट आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एंजल एग्जाम्पल दे सकते हैं, ताइफ की दे सकते हैं, व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज केयर एंड कंसर्न वाज शोन थ्रू एंजल जिब्राइल एंड द एंजल ऑफ माउंटेन, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन की आप एग्जाम्पल हजरत इब्राहिम की भी दे सकते हैं, व्हेन द फायर वाज कूल्ड डाउन ऑन हिम। ऑलराइट जी, बिल्कुल सब आप सही, आपकी एग्जाम्पल सारी ठीक है, ठीक है। So is this question is clear that what is the relation or link between angels and prophets? हम आगे चले। Yes, miss. Okay. Why is the belief in all prophets important in Islam? हाँ जी, एक तो one of the article of faith है। Other than this, prophets were all sent by Allah. It is written in the Quran that we should make no distinction between them, as Surah Baqarah says. ये 2:85 ही मैंने, मेरे अगर किसी के पास नोट्स हो तो मैंने उसमें लिखा, अदरवाइज बुक में भी होगा। And that they are the role models for their followers. Prophets showed patience, tolerance, steadfastness in times of hardship, from which we learn to show the same in times of hardship. यहाँ आप hardships की examples देंगे, कौन कौन सी examples होती हैं जो मैं अक्सर बताती हूँ, that like financial difficulties हो गई, ठीक है, financial difficulties, आपकी health problems आ सकती हैं, health issues हो सकते हैं, right, आपकी यहाँ फिर डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर हो सकता है, राइट, आप ये लिख सकते हैं फैमिली मेंबर। आप इस तरह से आपने एग्जांपल्स देनी है, एग्जांपल्स देंगे तो डेवलप होता है आंसर, एग्जांपल्स के बगैर डेवलप नहीं होता। Then prophets brought the message for the whole man. Prophet sallallahu alaihi wasallam brought the message for the whole mankind and explained the importance of religious obligation and social duties. यहाँ पर आप बताएंगे परफॉर्मेंस ऑफ सलात है, ज़कात है, और हेल्पिंग योर फेलो मुस्लिम्स in times of distress. ऊपर आप एग्जांपल ऑलरेडी दे चुके हैं तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है। Is it clear? Yes, miss. Okay. Yes. Next question is that how do the signs from the natural world strengthen a Muslim's belief in God? हाँ जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। वी आर बस एंडिंग दिस सेशन, इसका मतलब है हम 2022 आ गए, अक्टूबर नवंबर 21। आप मुझे बताएं कि how do the signs of natural world strengthen a Muslim's belief in Allah? किस तरह से? Who is going to answer? जी, बेटा, when you observe your surrounding, definitely it will strengthen your belief in Allah. किस तरह surrounding को observe करते हो? Day and night, sky, heavenly bodies के heavenly setting and bodies, rising. exactly. आपकी heavenly bodies या celestial bodies हैं, आपका flowers हैं, आपके seasons हैं, change of seasons हैं, बारिश है, rainfall है, इससे आपको कैसे क्या पता चलता है about your creator, कि जिसने ये बनाया कितना powerful ये होगा, और अल्लाह ताला पे आपका belief और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, that by observing our surrounding and environment like seasons, natural world, flowers, celestial bodies, day and night, these creations are the evidence of its creator. For such a well organized and coordinated world could not have been come into existence on its own. There is a harmonious systematic arrangement in the universe. ये मैंने जिसने मेरे नोट्स किए होंगे, मैंने प्री-रेसिडेंट डिक्री में भी ये चीजें लिखी हुई हैं। So everything Allah has created with its destined end, with proper and flawless planning. The life cycle of a plant, animals, human beings, these things all demonstrate the order of life and balance created in the world, nature and the environment. तो इससे क्या होता है? All these events strengthen our belief in Allah, कि कितने अल्लाह ताला powerful होंगे, ठीक है। Next is
How does the belief in divine decree affect the daily living of a Muslims? हाँ जी, divine decree है predestination decree. मुझे लगता है इस दफा predestination decree आ सकता है पेपर में. अब इसका अगर डेली इन्फ्लुएंस आ जाता है या इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे? जी बेटा. एक्सक्यूज मैम. जी बेटा बोलें. मैम सबसे पहले तो हमें सब्र आ जाएगा कि हमें पता होगा अल्लाह ने सारी चीजें पहले से प्लान की हुई हैं. शाबाश शाबाश. तो अच्छा, और मैम दूसरी बात एक थी कि कुछ पार्शली हम चेंज कर सकते हैं और पार्शली नहीं कर सकते, क्योंकि एक थी कि दुआ चेंज कर सकती है, तो फिर इन्वोकेशन पे एम्फसाइज करती है. आती है. आप दुआ की इंपॉर्टेंस लिखेंगे, बिल्कुल इसमें लिखेंगे. इसमें दो चीजों को आप टच करेंगे. एक तो ये कि Muslims will understand through this hadith that every good and bad comes from Allah. So in good times they should be thankful, and even in bad times they should be thankful to Allah and should seek Allah's help rather than cursing themselves. यहाँ आप एग्जांपल देंगे कि बैड टाइम्स की या हार्डशिप्स की कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई हैं. डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर है, या कोई फाइनेंशियल लॉस आ गया, या कोई हेल्थ इशू है, या कोई और क्राइसिस आ गए, तो उसमें इंस्टेड ऑफ कर्सिंग योरसेल्फ दिस बिलीफ encourages us to seek Allah's help and be thankful even in this situation to Allah. Moreover, this belief encourages us to seek Allah's to perform invocation. जी वालेकुम अस्सलाम. जी बेटा. मैंने अभी ज्वाइन की है, तो प्लीज आप बता दें आप क्या पढ़ा रही कैसे. बेटा आपने जो पिछला सारा मिस किया है कि मेरे YouTube चैनल में दोबारा इसमें आइए अपलोड हो जाएगा, आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं. फिलहाल हम ये प्रीडेस्टिनेशन डिग्री करें तो आप यहीं से इसको फॉलो करें. ठीक है. ओके मैम, थैंक्स. Importance of no problem. Importance of dua इसमें आ जाएगी. That Prophet himself says या said that dua can change decree or dua is a weapon of a believer. ये दो हदीसें हैं which tells us the importance of dua. कि दुआ से हमारी मसले भी हल हो सकते हैं, दुआ से हमारी डेस्टिनी भी चेंज हो सकती है, हमारी जो अल्लाह ताला ने पहले से कमांड की भी वो भी चेंज हो सकती है. सही है. तो ये यू आर सपोज टू राइट ऑल दिस. इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ and then how to show patience and tolerance in times of difficulties. Clear? Beta, is it clear? Should we move forward? Yes. Okay. Now pillars of Islam के कुछ B parts मैंने यहाँ पर अलग से किए हैं. That why is ablution given so much importance in your view? यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया that ablution removes the sins of the person. By purifying oneself, allow one to focus on God when in prayer. Purity is utmost importance in Islam, as Allah says in the Holy Quran, Allah loves those who repent and purify themselves. Prophet also said that purity is half of faith. If you write all these points, this will be more than enough along with the references. Explain how the outward actions performed during Umrah improve pilgrims inner spiritually. आप जब उम्रा पर परफॉर्म करते हैं वो आपको इनर स्पिरिचुअली किस तरह अचीव होती है या किस तरह वो करता है. तो बेसिकली व्हेन यू वेयर एहराम इट रिमाइंड्स यू ऑफ इक्वालिटी दैट ऑल मेन बिफोर अल्लाह आर इक्वल और दे फील हम्बल्ड. चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर अल्लाह. Then the recitation of Talbiyah focuses the mind of the pilgrims on the fact that they have come in response to the call of the Creator. They are obedient to Him and acknowledge that no one is worthy of worship besides Allah. By performing tawaf kya hai, that each pilgrim is glorifying and praising Allah and seeking forgiveness and acknowledging His greatness and superiority. And even by looking upon the Kaaba, a spiritual experience of immense magnitude for every Muslim. And by shaving our head at the end, the Umrah improve inner spirituality of the pilgrim, as nothing, it makes us realize that nothing is superior then seeking Allah's pleasure. हमारी कोई appearance भी important नहीं है, हम shave कर लेते हैं, cutting कर लेते हैं, अल्लाह की pleasure के लिए. ठीक है. Now the question is that why in your opinion is it desirable that pilgrims should visit Medina after the performance of Hajj? पहली बात तो है कि Medina is a sacred city and most importantly Prophet ﷺ वहाँ रहे थे. Even he preferred to live in Medina after the conquest of Makkah, and Islam was flourished and spread even in Medina, not in Makkah. वो बाद में हुआ था. Prophet ﷺ purified Medina just as Hazrat Ibrahim purified Makkah. जब वो वहाँ पर रुके थे, Makkah was nothing, खाली एक deserted area था. तो इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को प्योरीफाई किया, वहां रह के इस्लाम को फ्लरिश करके, प्रॉस्पर करके. Prophet is buried in Medina. इस वजह से और हदीस में भी Prophet ने कहा है कि who makes pilgrimage and then visits my grave after my death is like the one who visit me in his life. ठीक है.
Next question is about the importance of Laylatul Qadr. Explain why Laylatul Qadr is so much important for Muslim. ये question set हुआ था 2021 में, June variant 21 का paper है. So Quran was revealed in the Laylatul Qadr. This night is of immense value as it states in the Quran. आपको पता है Layla surah Qadr भी इसी के नाम पर reveal हुई है. और this night is of reading, understanding and recite, reflecting upon the teachings of given in the Quran. The reward of this worship is more than the reward of worshipping for thousands of months. You can note down this point even. The Prophet himself has said that for those who spend Laylatul Qadr in prayer out of faith and in the hope of reward will have his previous sins forgiven. Muslims usually made special arrangement for this night. And in Surah Qadr, it says that the angels and the spirits descend to the earth by Allah's permission and that peace prevails until the rise of dawn, Fajr tak. Next question pe aa jaye. In your opinion, what is the most important benefit of giving zakat? ये zakat का question जब आता है तो giver और receiver दोनों के benefits किसी का भी एक आ सकता है. इस वक्त giver का benefit है, तो what is the benefit for the giver of zakat? जो zakat देता है उसको क्या important, मतलब उसके लिए benefit क्या है? अहमद बेटा आप guess का पूछ रहे हैं. guess मेरे इंस्टा पर uploaded है 9 मार्च का और वो पिन पोस्ट है, आप देख सकते हैं. पेपर 1 पेपर 2 एक साथ ही मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं. जी ओके जज़ाक. नो प्रॉब्लम बेटा. मैम zakat purifies the soul, the wealth of the people. Zakat verify the प्यूरिफाई करता है. purify the प्यूरिफिकेशन wealth ऑफ of the वेल्थ है. गिवर रिलीजियस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करता है. ही परफॉर्म वन ऑफ द रिलीजियस ऑब्लिगेशन. नंबर 3, his wealth increases because Allah promised that the wealth of his will be increased. Number 3, he'll be thankful to Allah regarding number 4, he'll be thankful to Allah regarding his blessing because Allah has blessed him so much that he is giving zakat. He is one of the giver of zakat, not the receiver of zakat. ठीक है? I am repeating the point. Purification of wealth, performs religious obligation. He'll be thankful to Allah regarding his blessings. His wealth would to be increased. And number 5, his greediness would be decreased or would be removed from his heart, and he give preference to seek Allah's pleasure rather than his money. ये आपने 5th point लिखना है. Miss, what's your Insta ID? Please tell for guest paper. शमसा बेटा वो आप इसमें है इस्लामियत बाय आयशा अजहर लिखेंगी तो उसमें आ जाएगा. या O लेवल इस्लामियत मैं यहाँ पर लिख भी आपको लिंक थोड़ी देर में शेयर कर देती हूँ. ठीक है? यहाँ कोई बच्चा लिंक शेयर कर देगा जो कर सकता है प्लीज. ओके मैसेज में कर दे चैट बॉक्स में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in your opinion, should Hajj be performed as many times as possible in Muslims' life? Give reasons for your answer. Hanji, who will going to answer? Who will going to answer? Can you please repeat the question again? Ji, the question is, in your opinion, should Hajj be performed as many times as possible in life? No, ma'am, because Hajj must be performed one time. मिस मैं जवाब जी बेटा जवाब दें. मिस इसमें पहले तो लिखेंगे कि हज एक ही दफ़ा परफॉर्म होना चाहिए. आज होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही दफ़ा परफॉर्म किया था और कुरान में भी एक ही दफ़ा है. और अगर आपके पास इतने मींस हैं कि आप हज दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं तो आप या तो इससे चैरिटी कर दें या किसी और को करवा दें जिसके पास मींस नहीं है हज करने. बिल्कुल ठीक है. और इसके अलावा ये भी है कि बिल्कुल इसको हज बदल भी कहते हैं कि किसी और को परफॉर्म करवा दें. और दूसरा आप ये भी लिखेंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज वंस इन हिज लाइफ टाइम, so it's not important to perform hajj as many times as possible, so we give chance to other people to perform hajj. ठीक है? सुन्ना का जरूर मेंशन करना है इसमें साथ आपने, बाकी रेस्ट इज फाइन. ऑल राइट. Okay. Okay, ma'am. Next question is that Prophet performed pilgrimage only once in lifetime. What do you think that this tells Muslims? ये उसी की चीज आ जाए. Not to overburden his followers. Hajj requires good health and money to bear its expenses. Allah has himself made Hajj obligatory in a Muslim's lifetime. Then यहाँ मैंने एक reference डाल दी. If you want to write it, you can. Then the Prophet performed Hajj just once in his lifetime so that Muslims who are trying to follow his sunnah don't struggle with the performance of this pillar, as it is expensive to perform and it requires good health to perform all the rituals involved in it. सही है? ये उसी से almost related है. थोड़ा बहुत difference है इसमें. हजे बदल वगैरह नहीं लिखना जो हमने वहां पर ऊपर perform करना. Now the last is jihad. Jihad का आता है jihad bil nafs का. That why do you think that jihad of the nafs is greater than jihad bil sayf?
Now, jihad bin nafs is considered as the most important jihad because it is a struggle to resist temptation to evil and overcome one's weaknesses and failing on the daily basis, which many a times is harder to do so. Number two, this jihad is concerned with defeating evil, and Holy Prophet himself regarded it as the greatest jihad. Number three, jihad with self is fighting against an enemy whom you could see, whereas in jihad bil nafs, you can't even see your enemy, and sometimes it's just an evil whisper. Moreover, it is also against Satan, who as one has to defend himself against the evil whispering, his doubtful matters and his lustfulness. This includes performance that obligatory and voluntary to abandon all acts that are unlawful or makruh. इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है you can give examples that performance of ablution or performance of Fajr prayer in winter or fasting in which you abstain yourself acts which are forbidden in Islam. आप यहाँ पे daily life example दे सकते हैं. That's why it is more important. Okay. Next question and the last question of this session is, in your opinion, what is the importance of following the rules of armed jihad in modern times? हाँ जी, who will going to answer this question? इसके बाद हम session end करेंगे, कुछ tips बता देंगे distinction के लिए, और फिर उसके बाद मैम आपका नुमान, if I hang बेटा नुमान means I didn't get you. बेटा ये आप क्या कह रहे हो? अहमद, अच्छा जी, इस क्वेश्चन को कौन आंसर करेगा? In your opinion, what is the importance of following the rules of armed jihad in modern times? मैम ताकि दूसरों को इस्लाम के बारे में पता चल सके कि इस्लाम जिहाद का ये मतलब नहीं है कि बस आपने एक्सपेंशन करनी है इस्लाम की, डिफेंस के लिए होता है, इस वजह से हम रूल्स फॉलो करते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जब हम रूल्स को मॉडर्न टाइम पे फॉलो करते हैं, ब्लड शेड नहीं होगा, विमेन की रिस्पेक्ट होगी, चिल्ड्रन की रिस्पेक्ट होगी, देयर रिलीजियस प्लेसेस की रिस्पेक्ट होगी, और पीस भी डेवलप होगा, क्योंकि इट्स द लास्ट ऑप्शन टू अवेल, इट्स नॉट द फर्स्ट ऑप्शन टू अवेल. यू कैन राइट ऑल these examples or points. बेटा नंबर आई कैन नॉट शेयर अहमद, बट यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टा पे कर सकते हो, यूट्यूब के उस पे कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू. ऑल राइट, ठीक है जी बेटा. सो मॉडर्न में टाइम में अगर हम करते हैं आर्म्ड वॉरफेयर की रूल्स को फॉलो करते हैं तो पीस एस्टेब्लिश होगा. आपने लिखना है रिलीजियस प्लेसेस डिस्ट्रॉय जो हो जाती हैं वो नहीं डिस्ट्रॉय होंगी, ब्लड शेड नहीं होगा. ठीक है, आप ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको. इसके अलावा क्या कहते हैं, ब्रदरहुड वुड बी डेवलप्ड बिकॉज और सिंस इट वुड बी द लास्ट ऑप्शन. इस्लाम में टीचिंग यही है कि हो. और फिर अभी जो एक बच्चे ने बताया कि इसमें अभी क्या बेटा आपका क्या नाम था जिसने अभी एक्सप्लेन किया था, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, किसने ये शेयर बोला था अभी बेटा? अभी कौन आंसर कर रहा था? अहमद. हाँ हसन, आपने क्या पॉइंट बताए थे? हसन आपने भी मैम रेपुटेशन इस्लाम की, रेपुटेशन इस्लाम की, रेपुटेशन इस्लाम की अच्छी होगी. दैट इज के हम लोग जो है वो अपने पर्सनल ग्रीवियंसेस पर हम लोग नहीं करेंगे, यू नो जहाद पर्सनल ग्रीवियंसेस में नहीं होता, एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ नहीं होता, नॉट टू टेक रिवेंज. हम ये सब चीजें करेंगे तो डेफिनेटली इस्लाम की रेपुटेशन अच्छी होगी. अच्छा जी, सो दिस सेशन इज एक्चुअली एंडिंग. अब मुझे बताएं कि डू यू थिंक दैट दिस सेशन वाज फ्रूटफुल फॉर यू? थोड़ा सा कुछ समझ में आए क्वेश्चंस? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो. सो दिस मैम एक क्वेश्चन पूछना था. जी पूछें. मैम पिलर्स ऑफ इस्लाम के सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस आर द सेम थिंग. ठीक है, ओके. सो बेटा जिनके ये सेशन मिस हो गया है वो मैं ये भी अपना सारा जूम का सेशन यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी. दोज हु हैव मिस्ड दिस लेक्चर दे कैन वॉच ओवर देयर. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक. और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो वो इंस्टा के थ्रू मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है. जी बेटा. मैम पिलर्स ऑफ इस्लाम पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. मिस सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जर्वेंस में क्या फर्क? अच्छा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस कह रहे हैं. बेटा सिग्निफिकेंस इज द इम्पोर्टेंस, ऑब्जर्वेंस जो होती है उसकी प्रैक्टिस होती है. जैसे सलात की सिग्निफिकेंस इज इम्पोर्टेंस, ऑब्जर्वेंस सलात का मेथड आ जाएगा. इसी तरह शहादा की सिग्निफिकेंस है और उसकी प्रैक्टिस है टू बिलीव. ज़कात की सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस है और उसको देना ज़कात को इज इट्स ऑब्जर्वेंस. गॉट इट इब्राहिम?
क्लियर? ओके, ठीक है, चलिए जी, दिस इज इट फॉर टुडे। जी बेटा जी। मैम आई वांट टू आस्क दैट जी पिलर ऑफ इस्लाम से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं? बेटा, आपकी ना आवाज बहुत हल्की आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल एज सच। मिस मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। मिस पिलर ऑफ जब हम इस्लाम आ लिखते सकते हैं कि हजरत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन का लिखते हैं हम, हाँ ठीक है, तो उसमें हम लिखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मजलिस शूरा। ठीक तो है। मजलिस शूरा तो हजरत अबू बकर के टाइम से नहीं थी? हजरत उमर के टाइम पे 2 मजलिसें थी, मजलिस शूरा एंड मजलिस आम। हजरत अबू बकर के टाइम पर एक थी, मजलिस शूरा। दिस मजलिस शूरा वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 इन हजरत उमर्स टाइम, मजलिस शूरा एंड मजलिस आम। मजलिस शूरा वाज रिलेटेड टू द प्रोमिनेंट कंपेनियंस वगैरह, सारे उसमें आते थे। मजलिस आम में सारों की रिप्रेजेंटेशन थी, वो 2 डिफरेंट थी। ठीक है, ये ओके मिस। और कुछ किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना हो? मैम वो डिस्टिंक्शन टिप्स थे। हाँ, डिस्टिंक्शन टिप्स। अच्छा जी, आप डिस्टिंक्शन टिप्स का पूछे थे। पहली मैम बात, डिस्टिंक्शन के लिए मोस्ट अभी इम्पोर्टेंट आवाज आ रहा है मैम? योर रिटन एक्सप्रेशन। आपका रिटन एक्सप्रेशन से मतलब है कि आप इंग्लिश जो यूज करें, इट शुड बी ऑफ गुड वोकेबलरी, नंबर 1। नंबर 2, आप जब डिस्टिंक्शन पेपर को सोच रहे हैं कि जी हम डिस्टिंक्शन के लिए तैयारी करें, तो आपने इररेलेवेंट चीजें नहीं लिखनी, नॉट इवन अ सिंगल लाइन। ठीक है। नंबर 3, रेफरेंस नंबर शुड बी देयर। रेफरेंस नंबर का समझ में आ रही है, जो कोटेशंस आप लिखते हैं उसके नंबर होने चाहिए। फिर आपकी इसमें हैंड राइटिंग भी समटाइम्स आती है कि किस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन पेपर की कैसी है। पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी है, कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन रिटन एक्सप्रेशन बस एवरेज होता है, तो उनका A* तो आ जाता है, डिस्टिंक्शन नहीं आती है। फिर इसमें आपकी कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें मैटर करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में आप हदीसें जब A और B पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्या आप A पार्ट में रीफ्रेजिंग तो नहीं गलती से करें, या कुरान के पैसेजेस अगर आपने पेपर 1 में किए हैं, रीफ्रेजिंग तो नहीं ट्रांसलेशन की करें। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मिस, इज इट नेसेसरी टू राइट रेफरेंसेस टू रेफरेंस पूरा नंबर? जी बेटा, रेफरेंस नंबर वैसे आमतौर पे तो इट्स नॉट नेसेसरी। आपने डिस्टिंक्शन की बात की है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चों के A* आए हैं, वो रेफरेंस नंबर नहीं लिखते, लेकिन मैं ये बच्चों को बात समझाती हूँ कि जब आप रेफरेंस नंबर लिखते हैं तो वो एक आपको कुशन मिल जाता है। जब आपकी कोई गलती होती है तो वो A* की तरफ आपका चला जाता है कि यहाँ कोई गलती हो जाए, यहाँ आपने कोई डिटेल मिस कर दी हो, तो वो आपके रेफरेंस नंबर के साथ कॉम्पनसेट हो जाती है। बट इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि गलत रेफरेंस नंबर लिखने से बेहतर है आप मत लिखिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन बच्चे? मैम मैंने बोला पिलर ऑफ इस्लाम से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं? कौन से आ सकते हैं? पिलर ऑफ इस्लाम में से? जी जी। बेटा, पिलर ऑफ इस्लाम में से क्वेश्चन एक तो आना ही आना है लाजमी। वो 2 आ सकते हैं, ये पूछें तो 2 भी आ सकते अच्छा हैं। 2 नहीं? जी, अच्छा सही मैम। और इस तरह वो उसमें भी ऐसे आर्टिकल्स ऑफ फेथ में ना मैम? कई दफा आर्टिकल से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे। ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ, मैंने बोला सिर्फ आपका सिर्फ जो कैसे पढ़े वो कर ले, पेपर हो जाएगा फिर? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। मैंने ये अपनी सबसे, जो इससे पिछली मेरा जूम सेशन हुआ था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप बेशक यूट्यूब पे जाके देख लो। मैंने पहली बात ही गेस्ट पे बता के ही कही थी, गेस्ट इज जस्ट अ गेस्ट, कि आप एक गेस्ट करते हैं विच यू फील इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसको हदीस या की समझते उसको एक चेक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, आपने उसमें ओके से मैम। चेक लिस्ट बनानी है कि मैंने क्या ये टॉपिक कवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ, दैट्स इट। या मैम। एनी अदर मैम आप क्वेश्चन बेटा? टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा गाइड करें, मेरा वो पेपर 1 में टाइम मैनेज नहीं होगी मैम। बेटा पेपर 1 तो गुजर चुका है। टाइम मैनेज नहीं होगी तो आप थोड़ा गाइड कर दें मैम। आ, बेटा इस वक्त तो मेरे पास ये टाइम नहीं है गाइड करने का, लेकिन आप राइटिंग स्पीड बेहतर कर सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग पास्ट पेपर क्वेश्चन। ठीक है। ओके ओके मैम। अच्छा जी, एक और चीज ये है कि अब आज का सेशन हो रहा है एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी है कि मैनी ऑफ यू आई थिंक हैव सब्सक्राइब माय चैनल, जिसने बाकियों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं वहां पर अपलोड कर दूँ। ठीक है। मैम कल कोई क्लास है कि नहीं, नहीं? कोई क्लास नहीं है, दिस इज द लास्ट क्लास एंड इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज इट बेटा फॉर टुडे। और आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और दुआ में याद रखें मैम। श्योर बेटा, और एक थम्स अप सब दे दें कि जी सबको ये वर्कशॉप अच्छी लगी, मुझे पता चल जाए कि सबको समझ में आ गई ये सब चीजें। 1 thumbs up फॉर मी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बहुत अपना ख्याल रखें एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक मैम केयर। अल्लाह हाफिज। अहमद बेटा, यू कैन मैसेज मी इन इंस्टा, मैं आपको गाइड कर दूंगी।
Thank you so much, beta. Ibrahim, thank you for acknowledgement. अभी Thank you. आप एक्टिव होगी मैम? And please give your feedbacks on my Facebook या Insta के page that how was this workshop. मेरे पेज पर आपने फीडबैक देना नहीं भूलना. इससे थोड़ी सी इंशाल्लाह मुझे एक वो मिलती है एनकरेजमेंट कि मैंने अगर किसी के लिए ऐसे किया तो उनको भी अच्छा लगा है. सो कमेंट्स के साथ मुझे आपने फीडबैक जरूर देना, क्योंकि पिछले जूम सेशन का ऐसा मुझे एक आध बच्चों के अलावा किसी ने फीडबैक नहीं दिया था. ठीक है, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. मैम आप इंस्टा पे एक्टिव होगी अभी? जी जी बेटा होंगी जी. अल्लाह हाफिज. मैम एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है, उधर जी पूछो. बेटा पूछ लें. अल्लाह हाफिज. फिर मैम दुआ में याद रखो मैम. जी जी श्योर ये बेटा. खरगोश अल्लाह हाफिज.